will start the MATLAB fundamentals. Before starting the PPT, I will share with you the syllabus of MATLAB which we have to do. So there are basically 6 units. The first unit is about MATLAB fundamentals, where there is introduction, versions, launching, window, help, types of features, creating directory and saving files, syntax, variables, expressions, functions, commands, problems. So these are the fundamentals of the MATLAB. Then we will learn about the addition, subtraction, how we do vector products, what is transpose, what are many various commands and what are the problems. Then there is MATLAB programming, in which we use the MATLAB files for scripting and functions. We will learn various variables, data types, examples of various operators and the structures. Then we will try to plot some graphs, and we will find out various GUI, 3D and 2-dimensional plots. Then we will learn about the toolboxes of MATLAB. We will try to cover some of the MATLAB toolboxes, like communication toolbox, signal processing toolbox, control system toolbox. So we will try to access some of the toolboxes. Then we will go to unit 6 about the basics of Simulink, how we do the simulation in the MATLAB. Okay, so this is the syllabus. I have uploaded the syllabus in a new classroom which I have created for you. You just check your emails. I have sent you the emails about the MATLAB, and from your emails you can join directly from there to the classroom. Okay, so this is the syllabus of MATLAB. So the first topic is about the MATLAB fundamentals, that what is the working of MATLAB, how you install the MATLAB, and what are the basic commands which we can use, these fundamental commands of MATLAB. So this is the first topic. So I think nobody have worked so much on MATLAB. अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने ज़्यादा MATLAB के बारे में ऊपर काम नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत सुना ही है आप लोगों ने MATLAB के बारे में. So I think we have to start from the initials of the MATLAB. हमें सबसे पहले initials के बारे में पता करना है MATLAB के, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. Because in BTech there are not so much projects which on which you have used MATLAB. I think very few of you know much about MATLAB. Nobody knows much about MATLAB, but now suddenly you have to work on MATLAB, because your synopsis and dissertation work, you have to do the simulation on the MATLAB. So it is
there is so much work to do for you guys in this semester and in the next semester. आपके यहाँ इस सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट तो 2 हैं और एक आपके ओपन इलेक्टिव है, बट आपका इस सेमेस्टर और नेक्स्ट सेमेस्टर में तो काम और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है, बिकॉज MATLAB इज़ वेरी न्यू टू यू एंड सम न्यू टॉपिक यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू अभी तक आपको एक बुक दे दी जाती है कि आप इस बुक में से पढ़ लीजिए और आप याद कर लीजिए, मगर आप डेजर्टेशन जब आपकी आएगी तब ऐसा नहीं होगा, आपको खुद ही कुछ नया ढूंढना है। कोई आपको मैं ही आपको ये नहीं बता पाऊँगा कि आपको ये बुक पढ़नी है, इसमें से पढ़ लो, फिर आपको अपने आप ही कुछ ना कुछ ढूंढना है आपको और उसके ऊपर पढ़ना है और काम करना और सिमुलेशन करनी है MATLAB में या किसी भी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी learn about that what is a MATLAB and what is the working of this MATLAB. So the features of MATLAB, you can see on your screens that MATLAB is a numeric computation software for engineering and scientific calculations. This you can say the definition of MATLAB, and from next week onwards I need everyone to be seated on the laptops, because I will share something, because it is not possible that I can teach everything on PPT of MATLAB. We have to do some programs and simulation. For that everyone should sit on the laptop, because I will share your screens and my screen and my data and your data simultaneously. Okay, so I will give you 1 week time. From next week you have to install and be familiar with the MATLAB. अगले हफ्ते तक हमारी नेक्स्ट वीक जो हमारी क्लास होगी, तो आप लोगों को MATLAB आपके सिस्टम में आपको डालनी है और आपको इससे फेमिलियर होना है कि व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ द MATLAB. Okay, so I will tell you everything that how you have to install the MATLAB and how you have to work on MATLAB. So MATLAB is a numeric computation software for engineering and scientific calculations. The MATLAB, the full form of MATLAB is Matrix Laboratory. Because you can see the MATLAB full form is Matrix Laboratory. यानी कि हमारा जितना भी काम है, हमारे जितनी भी हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, वो सारी की सारी कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन दी मैट्रिक्स. मैट्रिक्स के ऊपर हमारी सारी की सारी कैलकुलेशंस हमारी बेस्ड हैं इस मैट्रिक्स टर्म के ऊपर. यानी कि MATLAB के अंदर जितने भी हम कैलकुलेशंस करेंगी दैट आर ऑल रिलेटेड टू ए मैट्रिक्स. हम सारी कैलकुलेशंस मैट्रिक्स की ही करते हैं इसके अंदर. तो यू नो मैट्रिक्स, व्हाट इज़ ए मैट्रिक्स सभी को पता होगा शायद. मैट्रिक्स हम कुछ इस तरह से लिखते हैं. ओए मैट्रिक्स लिखने के लिए हमें इस तरह से हमारा मैट्रिक्स होता है. So the calculations of this matrix, for the calculation of this matrix we have made a simulation software or a computation software that is known as MATLAB. The full form is Matrix Laboratory. So MATLAB is a primary tool for matrix computations. Okay, so
So MATLAB is a high level language whose basic data type is a matrix. हमारा जो डेटा है वो एक मैट्रिक्स है, एंड दिस डज नॉट रिक्वायर डायमेंशनिंग, दैट डज नॉट रिक्वायर डायमेंशंस, जिसको डायमेंशंस की ज़रूरत नहीं है. सो why MATLAB is so much popular? Because there is no complication and linking as we have to done in high level languages such as C and Fortran. जो C है उसके अंदर भी हमें कंपाइलेशन और लिंकिंग करनी पड़ती है फ्रॉम हाई लेवल टू दी मशीन लेवल, बट ऑल दीज आर डन इन MATLAB automatically, so that is why it is a very good simulation software, and all the algorithms which we design in MATLAB or simulation we do in MATLAB is based upon what? We have some basic knowledge of C++. हमें C++ की बेसिक नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, उसके बिना we cannot, the MATLAB is not possible without C++. C++ की इंफॉर्मेशन हमें थोड़ी बहुत ज़रूर होनी चाहिए, उसके बिना हम MATLAB के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे. हम MATLAB नहीं, किसी भी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं जब तक हमें बेसिक ऑफ C एंड C++ की इंफॉर्मेशन नहीं. So all computations are performed in complex valued double precision arithmetic to guarantee high accuracy. The graphics are integrated in MATLAB. These are the features of MATLAB. Since MATLAB is a programming environment, a user can extend the functional capabilities of MATLAB by writing new modules. So because it is a programming language, so हम इसके अंदर नए मॉड्यूल्स लिख सकते हैं. इसका मतलब क्या है? हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो प्रोटोकॉल या एल्गोरिथम जो भी हैं, हम उसके अंदर चेंजेस करके, जैसे कि हम करने वाले हैं और PhD के अंदर स्टूडेंट्स करते हैं, कोई नई मॉड्यूल डिज़ाइन करना, नई टेक्निक डिज़ाइन करना, दैट कैन ओनली बी डन in a programming environment, and that is a MATLAB. That is why MATLAB is so much important for engineers. हम कुछ भी नया करते हैं किसी भी फील्ड में, then there must be a simulation software, and MATLAB is the best simulation software for doing anything new. For example, now 5G is आपके मोबाइल के अंदर 5G आने वाला है. तो 5G ऐसे नहीं है हम जो है ना फिज़िकली हम उसको देखते हैं. सबसे पहले हम उसको वर्चुअली डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं और उसको सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या हमारे उसके अंदर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं. सो फॉर दैट वी नीड ए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, एंड MATLAB इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर फॉर डूइंग सच काइंड ऑफ न्यू मॉड्यूल राइटिंग्स. ओके. सो MATLAB हैज़ ए लार्ज कलेक्शन ऑफ टूल बॉक्सेस. हमारे पास काफ़ी सारे टूल बॉक्सेस हैं MATLAB के अंदर इन ए वैरायटी ऑफ डोमेन्स. हमारे पास हर डोमेन के लिए, चाहे वो वायरलेस है, चाहे वो कम्युनिकेशन है, चाहे वो कंट्रोल सिस्टम है, चाहे वो सिग्नल प्रोसेसिंग है, चाहे वो न्यूरल नेटवर्क्स है, चाहे वो डेटा कम्युनिकेशन है, चाहे वो आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, चाहे वो डेटाबेस मैनेजमेंट है, मशीन लर्निंग है, आपकी क्या कहते हैं. सो इन एवरी फील्ड MATLAB हैज़ प्रोवाइडेड यू दी टूल बॉक्सेस. हर फील्ड के लिए टूल बॉक्सेस प्रोवाइड कर रखे हैं सो दैट यू कैन डू एनीथिंग इन दी MATLAB. MATLAB इज़ सो मच वास्ट. इतनी बड़ी MATLAB है कि अगर कोई मेरे को इंसान आज तक ऐसा मिला नहीं है जो ये कह दे कि मुझे सारी की सारी MATLAB आती है. MATLAB का किसी को कोई टूल बॉक्स में एक्सपर्ट हो सकता है, मगर सारी MATLAB की इंफॉर्मेशन होना इज़ नॉट पॉसिबल. काफ़ी मुश्किल टास्क है. जैसे फॉर एग्जांपल भी आई डोंट नो मच अबाउट द अदर टूल बॉक्सेस. आई हैव ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट द ओनली वन टूल बॉक्स, दैट इज़ द कम्युनिकेशन टूल बॉक्स. मैंने आज तक जो भी काम किया है वो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कम्युनिकेशन टूल बॉक्स के ऊपर ही किया है, और किसी टूल बॉक्स के बारे में मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है नहीं. हाँ, थोड़ा बहुत इमेज प्रोसेसिंग के बारे में बता सकता हूँ, ओनली बेसिक्स. आई हैव डन नॉट एनी रिसर्च
और आई हैव नॉट डिज़ाइंड एनी न्यू मॉड्यूल। जो न्यू मॉड्यूल है ये मैंने आज तक कभी इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर मैंने डिज़ाइन नहीं किया। मैंने कम्युनिकेशन के फील्ड के अंदर न्यू मॉड्यूल्स डिज़ाइन कर रखे हैं मैटलैब के अंदर। तो that is why I don't know much about the other toolboxes. When I will show you the basic working of MATLAB, then I will show you that there are numerous toolboxes, काफ़ी सारे toolboxes है और उनमें से हम किसी एक toolbox के ऊपर काम करेंगे। So example of toolboxes are like control systems, signal processing, neural networks, image processing and system identification, communication toolbox, काफ़ी सारे toolbox है हमारे। तो all these toolbox are for your programming in a specific सब्जेक्ट। आप किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक के ऊपर काम कर सकते हैं मैटलैब के ऊपर। बिकॉज यही तो मैंने बताया आपको कि मैटलैब काफ़ी वास्ट है और इसके अंदर आप किसी भी अपने टॉपिक के ऊपर काम कर सकते हैं। सो आई विल नाउ आई हैव टोल्ड यू द फीचर्स, नाउ आई विल क्विकली मूव इन द मैटलैब। मैं मैटलैब के ऊपर जल्दी से आता हूँ। So this is a MATLAB system। ये MATLAB का स्टार्टिंग फेस है जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। The MATLAB which I am showing to you is R2015A। हमें जो मैटलैब इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम्स के अंदर वो हमें इंस्टॉल करनी है मैटलैब 2015A। ठीक है जी। मेरे पास मैटलैब आई हैव मैनी वर्जन्स ऑफ मैटलैब। आई हैव मान्या नीचे जाओ, मम्मी बुला रही है। मान्या नीचे जा। Sorry, MATLAB I have 2015, 2019 and 2020. But before going to 2020, we have to first of all use 2015, and all our work of dissertation can be completed in only this MATLAB. So the MATLAB we will use is 2015, and you have to install this MATLAB. I will tell you how you can install this MATLAB। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये MATLAB अपने लैपटॉप्स के ऊपर कैसे इंस्टॉल करनी है। बिकॉज यू कैन नॉट, आप लोग जो हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर हम UIT के अंदर अगर काम कर रहे होते तो हम अपने लैब्स के अंदर, हमारी जो MATLAB की लैब है उसके अंदर हम काम करते। सो दैट विल बी वेरी ईजी फॉर यू। वो आसान भी रहता है स्टूडेंट्स के लिए। मगर अब हमें अपने लैपटॉप्स अपने घरों के अंदर ही काम करना है MATLAB के ऊपर। सो इट विल बी ए बिट, इट विल बी नॉट ए वेरी इजी टास्क टू डू। तो उसके लिए पहली बात तो है कि आप अगर लैब में होते तो आपको MATLAB इंस्टॉलेशन और ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास सीधा ही ये विंडो आती और आप सीधा काम करना स्टार्ट कर सकते थे। बट अब आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एंड दैट यू नो दैट MATLAB इज़ नॉट फ्री। MATLAB फ्री नहीं है बिल्कुल भी। MATLAB इज़ ए पेड सॉफ्टवेयर। तो जो पेड सॉफ्टवेयर है दैट इज़ नॉट वेरी ईजी टू गेट। आपको पता है कि वो इतना आसान नहीं है सभी लोगों को मिल जाए। एंड so that is why as you are at your homes, you have to download the pirated copy or cracked version
ऑफ मैटलैब आप लोगों को, अगर आप घर में हैं तो आपको क्रैक्ड वर्जन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, बिकॉज इट विल नॉट बी इजी फॉर यू टू बाय मैटलैब। आप लोग घर पे बैठ के मैटलैब को बाय नहीं कर सकते हैं। और हमारी जो यूनिवर्सिटी की UIT की हमने जो मैटलैब परचेज़ कर रखी है आप लोगों के लिए, वो भी आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो मैटलैब डाउनलोड करनी है वो क्रैक्ड वर्जन ही डाउनलोड करना है आपको मैटलैब का। तो आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू क्रैक मैटलैब। आपको मैटलैब कैसे क्रैक करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके ब्राउज़र के अंदर अपने ब्राउज़र के अंदर आपको जाना है गेट इनटू पीसी। ये एक वेबसाइट है। आई विल इन टेल यू ऑल दी डिटेल्स अबाउट दिस वेबसाइट इन दी क्लासरूम आल्सो। आपके जो मैंने मैटलैब की क्लासरूम बना रखी है उसके अंदर में आपकी मैं ये लिंक डाल दूँगा। कि सबसे पहले आपको getintoPC.com वेबसाइट पे जाना है और यहाँ आपको सर्च करना है मैटलैब 2015। तो जो सबसे पहला लिंक आएगा आपको उसी पे क्लिक करना है। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट एंड गो टुवर्ड्स एनी अदर मैटलैब, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इंस्टॉल मैटलैब 2015। कभी कोई ये सोचे कि मैं सीधा 2020 या 16 वर्जन डाल लूँ, सो ऐसा मत करना, बिकॉज वी ऑल हैव टू डू वर्क ऑन द सेम सॉफ्टवेयर। तो सभी को मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, मैटलैब 2015 ही आप लोगों को इंस्टॉल करनी है। सो यू हैव टू डाउनलोड दिस सेटअप ऑफ दिस, you will find out the setup. Here will be the setup. You have to download this setup, and this setup is of around 8 GB। ये अराउंड 8 GB का सॉफ्टवेयर होगा। यस, द फुल साइज इज़ ऑफ 7.36 GB। ओके, सो जब आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, देन जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो इंस्टॉलेशन करने से पहले यहाँ आपको एक रेड उसमें लिखा हुआ है, बिफोर इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर यू मस्ट वॉच दिस इंस्टॉलेशन गाइड वीडियो। ये इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देगा कि आपको ये सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, एंड देन यू स्टार्ट इंस्टॉलिंग दिस सॉफ्टवेयर। सबसे पहले वीडियो को देखना है और उसके बाद ही आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। अगर आपने ज़्यादा ही कुछ भी उल्टा सीधा किया तो कोई भी स्टेप मिस कर दिया, बिकॉज यू नो मैंने अभी आपको बताया ये क्रैक्ड वर्जन है। तो क्रैक्ड वर्जन के अंदर आपको 10-12 स्टेप्स होंगे इसके अंदर, जो आपको इंस्टॉल करने से पहले सारे वो स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। उसके बाद ही आपने एक भी स्टेप मिस कर दिया ना उसके अंदर, तो हमारी मैटलैब इंस्टॉल नहीं होगी और आगे भी कभी इंस्टॉल नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं है कि एक ही बार नहीं होगी, आगे भी कभी इंस्टॉल नहीं हो पाएगी, बिकॉज़ अगर उसके अंदर जो पैचिंग है, हम पैच करते हैं इसके अंदर, क्रैक्ड वर्जन होता है उसके अंदर पैचिंग होती है। अगर वो पैचिंग ढंग से नहीं होगी तो वो आपका जो मैटलैब है वो ओरिजिनल सर्वर के साथ लिंक हो जाएगा, और जैसे ही वो ओरिजिनल सर्वर के साथ लिंक होगा सो आपकी मैटलैब चलेगी ही नहीं, और वो आप उस फाइल को अपने विंडोज़ में से कभी डिलीट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इट विल बी नॉट बी ईजी फॉर यू टू फाइंड दैट फाइल जो सर्वर से कनेक्ट होगी। तो इसके अंदर क्रैक्ड वर्जन के अंदर यू कैन if you know something about the network security, then it is known as phishing। इसको हम फिशिंग कहते हैं। इसके ऊपर हम स्टूडेंट्स हमारे रिसर्च भी कर रहे हैं। अभी जो PhD के स्टूडेंट हैं वो ऐसी फिशिंग के ऊपर हम रिसर्च करते हैं। उसके अंदर क्या है कि ओरिजिनल सर्वर के ऊपर पिंग करने के बजाय एक फेक सर्वर है जिसको हम पिंग करते हैं मैटलैब का, जिसकी मदद से हम अपनी जिसको हम क्रैक करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज क्रैकिंग द सॉफ्टवेयर। तो हम एक फेक सर्वर को हम पिंग करते हैं जिसकी मदद से हम सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं।
ठीक है। तो वो जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस यू हैव टू, फॉर दैट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। इस वीडियो को आप सभी को वॉच करना है। उसके बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, अगर ये कोई कहता है कि सर मेरा प्लीज़ इंस्टॉल करवा दीजिए, तो आई एम रेडी फॉर ऑल ऑफ़ यू टू, मैं आप सभी का, अगर किसी को भी अगर कोई ऐसा है कि मुझसे तो होगा ही नहीं, तो वो भी मुझे आप बता दीजिएगा इन दी चैट रूम। हमारी जो व्हाट्सएप है उसके अंदर भी आप मुझे लिख के बता सकते हैं, या मेल भी कर सकते हैं कि सर मुझसे हो नहीं रहा है। क्लासरूम में जो ना रखे उसके अंदर भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी आपको इश्यू आए। और अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो खुद ही कुछ कर लेंगे, तो वो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप और स्टूडेंट्स की भी हेल्प कीजिए जो इसको इंस्टॉल करने में आपकी मदद करें। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, इंस्टॉल करने से पहले एक बार इसको डाउनलोड कर लीजिए। आज इट इज़ ऑफ 8 GB। तो आप लोगों को टाइम लगेगा इसको डाउनलोड करने के अंदर, और उसके बाद इस वीडियो को वॉच कीजिए। और जस्ट अ मिनट। सॉरी, आई डोंट हैव दी स्टेप्स। मेरे पास अभी स्टेप्स नहीं है इसको डाउनलोड करने के लिए। तो वो जो स्टेप्स हैं वो इस वीडियो से आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपसे नहीं हो पा रही है, तो यू कैन राइट मी, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। फॉर देट यू प्लीज़, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है, आती है अगर प्रॉब्लम, अगर इसको डाउनलोड करने में या इसको इंस्टॉल करने में, तो प्लीज़ इंस्टॉल टीम वीवर। टीम वीवर सारे के सारे डाल लीजिए, सो दैट आई कैन एक्सेस एनी वन ऑफ योर्स कंप्यूटर। मैं किसी का भी लैपटॉप अगर मुझे एक्सेस करना पड़े, कुछ मुझे इसके अंदर एडिट करना पड़े, अगर किसी स्टूडेंट की मैटलैब इंस्टॉल नहीं हो रही है या समझ में नहीं आ रही है कि कैसे इंस्टॉल करना है, तो आप उस स्टूडेंट को मैं ये कहूँगा सबसे पहले टीम वीवर को डाउनलोड करें, सो दैट आई कैन रिमोटली एक्सेस योर डेस्कटॉप और योर पीसी। आपका पीसी या डेस्कटॉप में एक्सेस कर सकूँ, उसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टीम वीवर को आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए। और इसको एक बार डाउनलोड करके इसके अगर वीडियो आपको समझ में आ जाता है तो इसको इंस्टॉल करने की कोशिश कीजिए। और जब आपका इंस्टॉल हो जाएगा, तो तीसरा स्टेप हमारा है tutorialspoint.com। इसके अंदर मैटलैब का ट्यूटोरियल है, काफ़ी अच्छा ट्यूटोरियल दे रखा है। इसको आप जब तक ये मैटलैब इंस्टॉल होती है, आप इस ट्यूटोरियल को ज़रूर पढ़िए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और हमारा जितना भी सिलेबस है वो सारा का सारा ये ट्यूटोरियल ही है। जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल दीज पॉइंट्स आर फॉर दी फ्रॉम योर सिलेबस। आपके सिलेबस में से ही हैं ये सारी चीज़ें। तो ये मैटलैब कैसे काम करती है, अंडरस्टैंडिंग द मैटलैब एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज़ रिटन हेयर। सब कुछ इसके अंदर लिखा है। आपको एक बार प्लीज़ ये इसमें से निकाल लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा ट्यूटोरियल्स पॉइंट से, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू एंड फॉर मी आल्सो टू लेट यू नो मोर इन मोर डिटेल अबाउट द मैटलैब। मैटलैब के बारे में और डिटेल में मुझे आपको बताने का मौका तभी मिल पाएगा जब आपको बेसिक कमांड्स जो हैं, लाइक 5 + 5 = 10, और ये तो वेरी सिंपल है, पाई, साइन पाई बाई 2, दिस इज़ साइन ऑफ एंगल 90 डिग्री। तो इस तरह के आप जो कमांड्स है, बेसिक कमांड्स, एक बार आप प्लीज़ गो थ्रू हो जाइए इस ट्यूटोरियल्स पॉइंट से, विच विल लेट यू लर्न मैटलैब and the commands, what are M files, data types, operators, decisions, loops, vectors, metrics, everything you will get from here. So this is your task up to next week, next Wednesday तक आपका ये टास्क है कि आपको ये ट्यूटोरियल्स पॉइंट के जितने भी पॉइंट्स हैं, एडवांस से ऊपर तक, ये सारे आपको पढ़ने हैं। मैटलैब को डाउनलोड करना है और मैटलैब को इंस्टॉल करना है।
अगर कभी भी किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइम कोई भी प्रॉब्लम आ रही है मैटलैब को डाउनलोड करने में या फिर उसको इंस्टॉल करने में समझ में नहीं आ रही है, तो एनी टाइम यू कैन पिंग मी एंड आई विल हेल्प यू एनी टाइम। आई एम एवरी टाइम आई एम अवेलेबल फॉर यू। मैं हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हूँ। जब भी आपको लगे कि मेरे से मैटलैब इंस्टॉल नहीं हो पा रही है सर, मैंने ट्राई की, मेरे को समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे पिंग करना। हाँ, ऐसा मत करना कि आपने जो उसके अंदर जो स्टेप्स हैं वो मिस कर दिए और फिर मुझे पिंग करो कि सर अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। जहाँ आपको समझ में ना आए, जैसे उसके अंदर 10 पॉइंट है, एक आपको टेक्स्ट फाइल मिलेगी, जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे उस टेक्स्ट फाइल के अंदर 10 पॉइंट्स होंगे। तो पहला पॉइंट आपने पढ़ा, वो आपको समझ में आया तो आप कर लीजिए वो पॉइंट, फिर दूसरे पॉइंट पे जाइए। अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो वहीं रुक जाइए और आप उस टाइम पे मुझसे पूछ सकते हैं कि अब मुझे इसमें क्या करना है सर। ठीक है, तो यही सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत करना आपने सारे पॉइंट कर लिए और उसके बाद बोले कि सर अब तो कुछ चल नहीं रहा है, तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। पॉइंट पढ़ना है, उसको करने की कोशिश करनी है। अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तो उसी पॉइंट पे रुक जाना है कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, यहाँ मुझे क्या करना है। गॉट इट? तो सभी को यही टास्क दिया मैंने आज, सभी को ये डाउनलोड करनी है, इसका वीडियो डाउनलोड करना है, इसको देखना है कि आपको इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। और इंस्टॉलेशन अगर हो जाए, जिस स्टूडेंट की हो जाए, तो वो प्लीज़ और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी हेल्प कीजिए। और अगर नहीं हो पा रही है, आपको भी समझ में नहीं आया है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो ये आपको करना है सो दैट वी कैन लर्न अबाउट दी प्रोग्राम्स एंड एल्गोरिथम्स ऑफ मैटलैब। हमारे जो मैटलैब और के प्रोग्राम्स और एल्गोरिथम्स हैं वो हम पढ़ सके, कर सके, तो उसके लिए आपको पहले ये स्टेप्स करने हैं। आई होप सभी को आज ये समझ में आ गया होगा कि हमें आज क्या करना है। हमें मैटलैब को डाउनलोड करना है। Second thing I want to tell you is that the allotment of supervisors has been done, and you can see the allotment on your screens. This is the allotment. I will upload this allotment on your classroom also. Okay, you can check the respective supervisor names of the students. स्टूडेंट्स के जो सुपरवाइज़र्स हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, और इसको मैं अपलोड भी कर दूँगा। तो आपको अपनी सिनॉप्सिस कैसे करनी है, क्या काम करना है, यू नाउ have your supervisor names and you can ask them about how to design and how to get a topic of research or dissertation from the supervisors. आपके supervisor से अब अपने synopsis और अपना topic of dissertation आप पूछिए और start doing work on your respective topic. Okay. तो आज का जो क्लास है मैं उसको यहीं एंड करता हूँ।